Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, we are going to start our lectures today, inshallah ta'ala, and we are going to start the subject of endocrinology. Today's lecture will be an introduction to endocrinology, but as it is my routine, I start with one ayah from Holy Quran and its translation. I have selected the ayah from Surah Ahzab, ayat number 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. तर्जमा इसका कि देख लें किसी मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसला के बाद किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। ये हमारा मोमिन होने का यही मकसद है कि हमने अपनी मर्जी छोड़ दी है, अल्लाह की और रसूल की मर्जी को इख्तियार किया है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, किसी मोमिन मर्द औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसला के बाद किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। जो काम अल्लाह ने हुक्म दे दिया वही होना है। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल की जो नाफरमानी करेगा, यानी अल्लाह का हुक्म जो आ चुका है उसके अगेंस्ट करेगा, तो फ़क़द ज़ल्ल ज़लालम मुबीना, वो शरीक गुमराही में पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कि हमने इकरार किया है कि हमने अल्लाह और रसूल की मान के चलनी है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So our subject which we are going to start is endocrinology. Endocrinology is one of the two important control system of the body. There are many control systems of the body, but there are two major control systems of the body which control all the functions of the body. One system, there are two control systems. One is commonly, many even laymen know, that there is a brain and there is a system of nervous system which is known as, which controls many functions of the body. Yes, nervous system is a major controller of the body, but it is responsible for the control of general somatic bodily function. Gross functions are controlled by this nervous system. Locomotor control, I am moving my hands, I am talking and I am thinking, this is nervous system. And there are reflexes. For example, I can withdraw my hand. These reflexes, somatic and visceral reflexes, they are the controlled by the nervous system. And very important function of this nervous system is it is responsible for the perception of change in the environment. मिसाल के तौर पर गर्मी हो गई है, मिसाल के तौर पर बहुत सर्दी हो गई है, मिसाल के तौर पर जलजला आ गया, मिसाल के तौर पर कोई और चेंज आ गया, उस चेंज को रिस्पांस देना, the perception of the environmental change and response to that environmental change is the function of the nervous system, and respond to this change I have said. Now the second important system which we are going to discuss from today, that is endocrine system, endocrinology. That is the control on the metabolism. That is controlled at the level of chemical reaction taking place in the body. Metabolic functions are controlled by the this endocrines. Chemical and biochemical changes, reaction taking place in the cells, protein synthesis, or the glucose utilization, etc. And growth. This is again metabolism. Many proteins are being synthesized, the person is growing, and the transport across the cell membrane, very important. You know it, you have studied this cell membrane phenomena. That is, that transport is primarily controlled by the endocrine system. We will see it. And then secretion by different glands. This is the control in the hands of endocrine system, which we are going to discuss today. So these two control systems you will keep in mind. Then this endocrinology is also responsible for the control of our reproduction, that is continuation of life. That is, reproduction process is also primarily controlled by the reproduction. Nervous system plays its role, but it is primarily controlled by the endocrine system.
these two systems, that is the nervous system and the endocrine system, both overlap at some areas. For example, there is adrenal medulla. Adrenal medulla produces hormone. We are going to talk about, हम उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं. Adrenal medulla, that is regulated by nervous system. हम देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वी विल डिस्कस इट. या आपको पता होगा, उसने आपने देखा होगा, दैट sympathetic system controls the secretion of adrenal medullary hormones. एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आगे हम देखेंगे, या आपको आइडिया होगा उसका. एंड हाइपोथैलेमस, which is very important part of the nervous system, it has got many nervous activities. हम नर्वस सिस्टम ने आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ लेंगे, बट हाइपोथैलेमस आल्सो इज इन्वॉल्व्ड इन द एंडोक्राइन सिस्टम. इट आल्सो कंट्रोल द एंडोक्राइन. फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलर ऑफ ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स. So there is overlap, interrelationship between the two systems does occur in many areas. Examples I have given you, the hypothalamus and the adrenal medulla. Now this hormone system is how we are going to define a hormone in next slide. You can see in this slide that is cell to cell interaction. एक सेल से दूसरे सेल को कैसे सिग्नल जाते हैं, that is types of cell to cell signaling कैसे होते हैं. कई टाइप्स के हैं, but basically there are three types. One is, for example, you can see this is a cell, it is producing something and it is that secretion is affecting the same cell. This type of secretion is known as autocrine secretion. The cell is producing something and that product is released and it acts on this cell itself. This secretion is known as autocrine secretion. Then there are secretion, that is this cell is secreting something and the secretion is affecting very nearby cells, and this is known as paracrine secretion. But we are discussing another type, that is this cell produces something that is absorbed into the blood, into the body fluid, and it is carried to other cells. And this type of secretion, which is carried by the body fluids and many blood is responsible for the carriage of these secretion to the site of action, endocrine system. This is endocrine secretion. Now इस diagram को अगर ध्यान में रखेंगे तो then definition of the hormone. What is a hormone? Hormone को हम define करेंगे. Of course, hormone is a chemical substance. हार्मोन बॉडी में जो भी चीज पैदा, इंसुलिन कोई केमिकल है बॉडी का. तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस जिसके 4 क्राइटेरिया होंगे, उसको हम हार्मोन बोलेंगे. क्या क्राइटेरिया होगा? ऑफ कोर्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल. बॉडी के अंदर पैदा होने वाली चीज है. बाहर का कोई केमिकल हमारे बॉडी में जाएगा वो हार्मोन नहीं कहला सकता. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल. एक सेल से भी पैदा हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ सेल ग्लैंड की फॉर्म में भी हो सकता है. So a chemical produced by a group of cells or cell and it is secreted into the body fluid. ये बहुत important criteria है. It should be secreted into the body fluid, not into a duct. Salivary secretion which is secreted into duct, that is not a hormone. जो enzyme पैदा होती है हमारे digestive, they are not hormones. They are enzymes. Hormone will be secreted into the interstitial fluid, into the blood, into the plasma. So it is secreted, दूसरा criteria, it is secreted into the body fluid. So that body fluids, blood हो या interstitial fluid हो, that body fluid carries this hormone to the site of action. साइट कहां पे काम करना है, वो पिछली डायग्राम में हमने देखा था, ब्लड के जरिए से वो दूर पड़ा हुआ सेल अफेक्ट हो रहा था. दैट इज साइट ऑफ एक्शन ऑफ दिस हार्मोन. सो उस साइट ऑफ एक्शन को मैंने रेड में लिखा हुआ है, दैट इज टारगेट. इसको हम आगे भी आएंगे. टारगेट होता है उस हार्मोन का टारगेट जिस पे जाके वो काम करती है. और तो वहां जाके काम क्या करती है? इट एक्ट्स, हार्मोन एक्ट्स ऑन दी टारगेट टिश्यू, अदर टिश्यू एंड रेगुलेट दिस फंक्शन. सो ये 4 क्राइटेरिया को जो केमिकल मीट करता है, दैट इज हार्मोन. ये 4 क्राइटेरिया जिसमें आएंगे वो हार्मोन होगा. नाउ टारगेट सेल्स, कौन सा टारगेट सेल होगा? जिसमें उस हार्मोन का रिसेप्टर होगा. कौन सा सेल टारगेट होगा? जिस पे हार्मोन का रिसेप्टर मौजूद होगा. रिसेप्टर नहीं होगा तो उस पे हार्मोन कोई काम नहीं करेगी. मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो यहां से पैदा होती है पिट्यूटरी से. उस पे मसल पे कुछ काम नहीं करती, उसका टारगेट कोई नहीं है मसल में.
It has got the target only in the thyroid gland. It acts on the thyroid gland अपने. So target cell कौन सा होगा? It has a specific receptor for the hormone. मिसाल के तौर पर these are the two hormones, hormone A and B. उनकी डायग्राम शक्ल देख लें. This is the triangular बनाए हुआ है और ये एक सर्कुलर बना दिया है. ये दो हार्मोन है. Now this is first cell. Now you can see these are the receptors. These you can see these are the receptors. This hormone cannot combine with this receptor. So this cell is target for only A hormone. This A hormone can combine. It has got the specific receptor site where it can combine. It can combine only with this receptor site. So this A hormone A will combine. So this is a target cell for the hormone A, not for hormone B. While this is the another cell, you can see this triangular hormone. This can fit into this receptor. It will combine with it. Hormone and receptor will combine, and then the onset of cascade of reaction will take place. उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन फिर वहां से शुरू होंगे. पहले हार्मोन कंबाइन करेगी रिसेप्टर के साथ. दिस हार्मोन विल कंबाइन. तो ये यहाँ पे कंबाइन नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे भी होता है. There are cells in which both the types of receptors are present. So both the types of the hormone will be acting on that. तो उसमें चेंजेस होंगी. So आपने याद क्या है रखना है कि हार्मोन acts on those cells where the receptors are present. So receptor hormone complex is the first step in the functions of all the hormones. Now the hormones are produced by cell or group of cell. हमने define कर लिया. Endocrine glands किसको कहते हैं? These are the ductless gland भी उनको कहते हैं. उनकी ducts नहीं होते because the secretion is not carried into the duct. It is absorbed into the blood, into the interstitial fluid. So इन glands को हम ductless gland भी कहते हैं. इनको gland ये कौन से हैं? इनका sole function हार्मोन प्रोडक्शन है. मिसाल के तौर पर पेनक्रियाज एक ग्लैंड है. उसका सोल फंक्शन ये नहीं है हार्मोन. उसका फंक्शन पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं. वो पेनक्रियाटिक जूस का हिस्सा नहीं होते. हम एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ उस ग्लैंड को कहते हैं जिसका सोल फंक्शन पिट्यूटरी का और कोई काम नहीं है सिवाय हार्मोन प्रोडक्शन के. वो सिर्फ हार्मोन प्रोड्यूस करता है. वो पेनक्रियास तो एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है डाइजेशन में काम करने के लिए. तो उसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो खास सेल्स हैं. आइलेट ऑफ लैंगराइन उनको कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा. आइलेट ऑफ लैंगराइन कहते हैं. बट उसका प्राइमरी फंक्शन उसका दूसरा भी है डाइजेशन में काम. जीआईटी सारे आप लोग जीआईटी होल ऑफ द जीआईटी उसका काम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है. लेकिन देयर आर मेनी हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द जीआईटी. तो लेकिन उसका सोल फंक्शन जीआईटी का हार्मोन प्रोडक्शन ना हुआ, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते. पिट्यूटरी का एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज सोल फंक्शन ऑफ दैट पिट्यूटरी इज द ओनली हार्मोन प्रोडक्शन. नाउ दी मैनी टिश्यूज अभी मैंने एग्जांपल दी. ऑर्गन्स दे डू प्रोड्यूस सम अदर हार्मोन. हार्ट प्रोड्यूस करता है हार्मोन, किडनी प्रोड्यूस करता है हार्मोन. अभी मैंने एग्जांपल दिया है जीआईटी प्रोड्यूस करता है हार्मोन. किडनी प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोइटीन, आपने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. एरिथ्रोपोइटीन इज प्रोड्यूस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरिथ्रोजेनेसिस. बोन मैरो पे जाके काम करते हैं. इट इज प्रोड्यूस इन द किडनी इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया. आपने ब्लड में पढ़ा होगा. और मैनी जीआईटी हार्मोन, बहुत ही हार्मोन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, मैनी हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द जीआईटी. एंड द हार्ट का काम तो पंप करना है भाई. आपने सीवीएस में पढ़ा होगा उसका जो काम है. लेकिन दैट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन. वन ऑफ द हार्मोन इज ए एंड पी. आपको नाम याद होना चाहिए अगर आपने सीवीएस पढ़ा हुआ है. दैट इज ए एंड पी इज एंटी नेट्यूरेटिक पॉलीपेप्टाइड. जो इसका काम है सोडियम का लॉस करता है इनटू द यूरिन. वो बात करेंगे. तो हाइपोथैलेमस जो नर्वस सिस्टम है वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है. पहले भी एग्जांपल दी थी. उसका नर्वस सिस्टम का उसका मेन रोल भी है, लेकिन एंडोक्राइन रोल भी है उसका. सो एंडोक्राइन ग्लैंड, ये स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अलग से ग्लैंड है पिट्यूटरी के. ऑल द न्यूरॉन प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर. ये भी हार्मोन है. न्यूरोट्रांसमीटर फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन. कैसे डिफाइन किया था? A chemical produced by a cell or a group of cells secreted into the body fluid acts on the other cell. So all the neurotransmitter acetylcholine यही करता है. It is produced by a cell secreted into the interstitial fluid and it acts on the muscle. For example, it acts on another neuron. So all the neurotransmitters are also hormones.
नाउ दिस डायग्राम इज शोइंग यू द डिफरेंट हार्मोन्स, इसको हम पिट्यूटरी ऊपर सबसे हाइपोथैलेमस इज अ हार्मोन, ये मैं अपना ये कर्सर ले आता हूं इधर से, यू कैन सी दिस इज द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज प्रोड्यूसिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग, पाइनियल ग्लैंड का भी एक्शन है, इट इज अ हार्मोन। नाउ इधर या थायराइड ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग हार्मोन थायरॉक्सिन, दीज आर दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड, ये 4 ग्लैंड इसके पीछे दिखाए हुए हैं, ये थायराइड ग्लैंड, ये येलो सा है, ऑरेंज सा जो नजर आ रहा है आपको, ये जो 4 ग्लैंड इसके पीछे हैं, दीज आर दी पैराथायराइड ग्लैंड। एंड देन दी थाइमस का भी रोल है, दिस इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड करते हैं। देन दी ये किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला भी एग्जांपल दी थी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम में। एंड देन दी ovaries in the female and testes in the male, they are also endocrine gland. Pancreas has got some tissue which produces the hormone insulin, उसको डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड की एक आइडिया हो गया। नाउ दी हाउ कैन वी क्लासिफाई द हार्मोन, हमने डिफाइन कर लिया, हार्मोन को क्लासिफाई करते हैं। एक ग्रास की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? देयर आर हार्मोन विच आर लोकल हार्मोन, ये जो हमने पैराक्राइन की बात की थी, लोकल हार्मोन है वो यहां से प्रोड्यूस हुए साथ वाले सेल पर। ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द टाइप ऑफ द लोकल हार्मोन, एक जगह से प्रोड्यूस होती है, साथ वाला दूसरा न्यूरॉन पड़ा हुआ है या मसल पड़ा हुआ है, उसका एक्शन करते हैं। सो दीज आर द लोकल हार्मोन, ये एसिटाइलकोलिन एंड अदर ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिक्रेटिन, ये जो जीआईटी में प्रोड्यूस होते हैं, पेनक्रियास पे एक्शन होता है। एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, ये एब्रिविएशन है, शायद जीआईटी में पढ़ी होगी या पढ़ लेंगे। कोलिसिस्टोकाइनिन जीआईटी की हार्मोन है, यहां से प्रोड्यूस होते हैं, यहां ही उसका एक्शन है करीबी, ये लोकल हार्मोन के एग्जांपल है। गैस्ट्रिन, ये जीआईटी की हार्मोन है। फिर देन ये तो लोकल हार्मोन, जनरल हार्मोन है जो हमने एंडोक्राइन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारी बॉडी के फंक्शन है। उस जनरल हार्मोन मोस्टली प्रोड्यूस बाय द स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड। ये तो जीआईटी हार्मोन थे ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर थे, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो जिनका नाम हमने डक्टलेस ग्लैंड रखा हो, पिट्यूटरी का, थायराइड ग्लैंड का या एड्रीनल का, इसका नाम ही हमने डक्टलेस ग्लैंड रखा हुआ है। इनकी हार्मोन जो है दे विल बी नोन एज जनरल हार्मोन्स। लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं। जनरल हार्मोन में कुछ हार्मोन है दे आर स्पेसिफिक टारगेट, अभी मैंने एग्जांपल दी थी टीएसएच हार्मोन है, जनरल हार्मोन है, पिट्यूटरी से पैदा होती है, लेकिन इसका साइट ऑफ एक्शन इज वेरी लिमिटेड, ओनली थायराइड ग्लैंड, सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे एक्शन उसका होता है। सो इट इज हैज गॉट अ लिमिटेड स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच टारगेट टिश्यू इसका मौजूद है। इस हार्मोन को हम कहते हैं स्पेसिफिक टारगेट हार्मोन। स्पेसिफिक टारगेट हार्मोन की एग्जांपल मैंने टीएसएच की दी थी। एंड एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, पिट्यूटरी से पैदा होती है और कहीं काम नहीं करती, सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम करती है। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका कोई काम नहीं है सिवाय ओवरीज में और टेस्टिस में, मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवरीज में काम करती है। और इसी तरह एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका कोई काम बॉडी में, मसल में, जीआईटी में, हार्ट पे, किडनी में कोई काम नहीं, उसका सिर्फ काम ओवरीज में और टेस्टिस में है। ओवरीज में फॉलिकल की ग्रोथ करती है और टेस्टिस में हम पढ़ेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ सम टाइप ऑफ सेल्स। सो ये स्पेसिफिक टारगेट हार्मोन है। और दूसरे कौन से? जनरल टारगेट हार्मोन, ये कि सारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अफेक्टेड। ग्रोथ हार्मोन है, सारी बॉडी पे काम कर रही है। थायरॉक्सिन प्रोड्यूसर है, सारी बॉडी पे काम कर रही है। सो दी ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ये जो ग्लूकोज वाली हार्मोन है, डायबिटीज लोगों में कम हो जाती है। इंसुलिन अफेक्ट्स कहां में? मसल में, एडिपोज सेल में, जीआईटी में, मसल में, न्यूरॉन में, हर जगह काम। सो ये जनरल टारगेट हार्मोन है। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन है, ध्यान में आइडिया हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये है बेस्ड ऑन, ये आखिरी स्लाइड है हमारी इंशाल्लाह आज के लेक्चर की, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। केमिकली क्या है? हमने तो डिफाइन करते हुए केमिकल सब्सटेंस बोल दिया था, लेकिन केमिकल नेचर क्या है? बेस्ड क्लासिफिकेशन हम केमिकल नेचर पे करते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं, बहुत से हार्मोन्स हैं, कुछ का क्या मतलब, बहुत से हार्मोन है जो सिर्फ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड है। छोटे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, बड़ा हो तो उसको हम प्रोटीन बोल देते हैं। मैनी हार्मोन्स आर प्रोटीन, ये जो आमतौर पर हम हार्मोन के नाम लेते हैं अभी, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एसीटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन हम डिस्कस करेंगे एट ड्यू टाइम। पैराथायराइड हार्मोन, ये सारे प्रोटीन, ये प्रोटीन। और प्रोटीन आपको पता है अमाइनो एसिड के मिलकर, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलकर बनते हैं, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, बहरहाल प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने। तो ये हमने बहुत सी हार्मोन के हमने लिस्ट कर दिए हैं, बहुत से हार्मोन। फिर कुछ हार्मोन हैं बहुत से इंपॉर्टेंट, स्टीरॉयड हार्मोन जिनको कहते हैं। स्टीरॉयड किसको कहते हैं? जिसमें वो कोलेस्ट्रॉल वाला रिंग मौजूद हो, आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या कहीं और देखा होगा। फिनेंथ्रीन 3 रिंग को 6 कार्बन वाले बेंजाइल रिंग जो होता है, 3 रिंग एक खास स्ट्रक्चर में परोके, वो उसको फिनेंथ्रीन बनता है। उसके साथ 5 कार्बन वाला एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसको पेंटाइल कह लें। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टीरोल रिंग, बोल देते हैं आसानी से। तो जिस चीज में ये स्टीरोल केमिकली मौजूद होगा उसको स्टीरॉयड बोलते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल में होता है। सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द हार्मोन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, जिनमें ये रिंग मौजूद है, साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन रिंग, ये नाम सुना होगा आपने, साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन, नाम याद नहीं रहता, स्टीरोल रिंग उसको कहते हैं। So aldosterone, cortisol, testosterone, estrogen, progesterone, all the examples of the steroid hormone. फिर आखिरी तीसरी क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव, स्पेशली टायरोसिन के डेरिवेटिव। ये जो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी अमाइनो एसिड टायरोसिन। उसमें कुछ तब्दीलियां करके हार्मोन बन जाते हैं। ये जो थायरक्सिन पैदा होती है, T3 T4 इसका नाम कहते हैं, थायरक्सिन नाम सुना हुआ आपने। इट इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम दी डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन, टायरोसिन में तब्दीली करके करते हैं। सो अमाइनो एसिड थायरक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, ये दोनों थायरक्सिन कहलाती हैं। और एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, दीज आर दी डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड। वैसे बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर अमाइनो एसिड से बनते हैं, वो भी हार्मोन है, लोकल हार्मोन की एग्जांपल है, लेकिन स्पेशल एग्जांपल्स आर दी थायरक्सिन एंड दी दिस। सो दिस इज टुडेज लेक्चर, हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह ताला वी विल टॉक अबाउट दिस हार्मोन का, हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज जनरल मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। ये जनरल मैकेनिज्म, हर हार्मोन का अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल मैकेनिज्म क्या है सारी हार्मोन का, ये मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस और स्टोरेज और सिक्रीशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हमारी इस पे आएगी। थैंक यू वेरी मच।